Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Today we will do question number 5 exercise 7.1 coordinate geometry. The statement is in a classroom 4 friends seated at a points A, B, C and D as shown in this figure. So this is 7.8 figure. These are 4 students A, B, C, D. We are seated in the classrooms and Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. So these are 4 friends ABCD. They are seated in the classroom at these positions. With the help of this scale, this is a x-axis and this represents the y-axis, we can find the coordinates of these points ABCD. After finding these points ABCD by using distance formula, distance between AB, BC, CD and DA, we will find whether ABCD is a square or not. Okay, so from this diagram we see that the coordinates of point A are, as you know that first of all we will write the coordinates of x then y. In ordered pair we will write the coordinates of point x then y. So coordinates of point A are, see here, x is here 3 and y is 4. So coordinates are 3 comma 4. Coordinates of point B, that is the student B is, this is B is 6 unit distance from x-axis and 7 from y-axis. So B is 6 comma 7. Come to point C, x is 9 and y is 4. C is 9 comma 4. And what about point D? D is 6 and y is 1. So this is 6 comma 1. So from diagram we here we find the points of coordinates of all these points. अब ऐसा है कि हमें ये बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है. तो पहले तो हमें सबसे पहले क्या है, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होंगी. तो पता चलेगा कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. सारे डिस्टेंसेस स्क्वायर में हर डिस्टेंस जो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालेंगे. सभी साइड्स जो वो इक्वल मेजर की होनी चाहिए. सेकंड क्या है, इफ़ दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, तो इनके डायगनल जो है स्क्वायर के दे आर ऑलवेज इक्वल, डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर. उसके बाद हम ए सी और ए सी एंड पी डी फाइंड आउट करेंगे. अगर ये इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द वर्क वी हैव टू डन फॉर दिस डायग्राम. So we know that first of all we will write the distance formula. We know that distance formula is, एक जनरलाइज करने के लिए हम एक डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लेते हैं. डिस्टेंस, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस इज प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर whole under root. This is the formula which we are going to apply to find the distance between the coordinates. Okay, now ए बी कोऑर्डिनेट्स, मुझे ए बी के बारे में बात करनी है. ए बी मॉड के क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे. ये मुझे फाइंड आउट करना है. एज ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया है, जो लेटर पहले लिखा जाता है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और जो सेकंड में आता है सेकंड नंबर पे वो x2 y2 बनता है. सो हम लिखेंगे हियर व्हाट इज x1 इज इक्वल टू, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3, दिस इज x1 y1 एंड y1 इज इक्वल टू 4. बी है मेरे पास सेकेंड लेटर, तो यहाँ आ जाएगा x2 y2. सो हियर x2 इज इक्वल टू 6 and y2 is equal to 7. These are the coordinates of points A and B. Now let us find the distance between A and B, and the formula is x2 minus x1 whole square. x2 minus 6 minus 3 whole square plus this is y2 minus y1 7 minus 4 whole square. So this can be written as, this is 3 square plus 3 square, that is 9 plus 9 under root is equal to under root 18. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3√2 यूनिट्स. जहाँ कहीं हमारे पास यूनिट्स नहीं लगे होते हैं वहाँ पे हम यूनिट्स वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, हमने ए बी निकाल लिया, मुझे बी सी फाइंड आउट करना है.
नो BC मॉड फाइंड आउट करना है। सो BC के लिए चेक करें आप, जो लेटर मेरे पास पहले B है तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो BC के लिए x1 बन जाएगा मेरे पास x1 y1 x2 y2। x1 इज 6 एंड y1 इज 7। BC है, B के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के बन जाएंगे x2 इज इक्वल टू 9 एंड y2 इज इक्वल टू दिस इज 4 है। ओके, सो BC मॉड भी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं और ये मेरे पास बन जाएगा x2 माइनस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। So this can be written as this is 3 square minus minus 3 square plus minus minus sign big number. This is 9. This sign is positive. 9 plus 9, again this is equal to under root 18, which is equal to 3 root 2 units. ओके, सो मेरे पास ए भी डिस्टेंस पता चल गया मुझे, वो भी अंडर रूट 18 है। BC भी मुझे पता चल गया, वो भी अंडर रूट 18 है। अब बात आई CD के ऊपर। नाउ व्हाट इज CD मॉड? CD मॉड अगर मैं निकालूं तो मुझे मेरे पास पता है x1, C के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2। सो x1 इज हियर 9, y1 इज हियर 4, y1 इज 4। x2 की अगर मैं बात करूं तो x2 मेरे पास यहाँ 6 है और y2 मेरे पास यहाँ पे 1 है। दिस इज x2 y2। सो लेट अस फाइंड CD मॉड। CD मॉड मेरे पास बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज x2 माइनस 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। So this is 9 plus 9 is equal to under root 18 is equal to 3 root 2 units. मैं इसे नंबर 1 दे दूँ, इसे नंबर 2 और ये मैं नंबर 3 दे रही हूँ। मेरे पास CD भी जो है वो भी मेरे पास अंडर रूट 18 आ गया है। नाउ वी विल फाइंड DA। ओके, सो फॉर DA तो मुझे क्या निकालना है अब डिस्टेंस, DA फाइंड आउट करना है। DA के लिए जो लेटर पहले है D, वो उसके x1 y1, A के बन जाएंगे x2 y2। D के कोऑर्डिनेट है x6 1 और A के हैं 3 4। सो x1 इज 6, y1 is 1, x2 is 3 and y2 is equal to 4. So these are the coordinates of DA. So let us find the distance DA mod. DA mod here will be equals to, that is x2 minus 3 minus 6 whole square plus y2 minus y1 4 minus 1 whole square. This is equal to minus 3 whole square plus 3 whole square whole under root, that is 9 plus 9 is equal to under root 18 is equal to 3 root 2 give this number 4. So देखिए हमने यहाँ पे AB, BC, CD और DA निकाल लिया और हमने क्या देखा 1 2 3 4 से all the distances, सारे के सारे मेरे पास क्या डिस्टेंसेस आए अंडर रूट 18। सब कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 18 है, मतलब ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वेयर्स आर इक्वल। अब क्या चेक करेंगे हम, वो तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, है ना, लेकिन अब हम चेक करेंगे इसके डायगोनल्स के लिए। तो अब देखिए हमने देखा कि सभी साइड्स का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 18 जो है वो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, अब बात किसकी आती है, AC और BD फाइंड आउट करने की, डायगोनल्स की। सो AC मॉड मुझे फाइंड आउट करना है। AC मॉड के लिए A के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के x2 y2। सो x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 9 एंड y2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC मॉड। डायगोनल AC हम निकाल लेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square. So this is equal to 6 square plus 0, that is equal to 36 under root is equal to 6 units. ठीक है, तो AC जो डायगोनल है उसकी जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस है बिटवीन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 6 यूनिट्स। नाउ वी विल फाइंड BD मॉड। BD मॉड के लिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी x1 y1। सो हेयर what is BD mod? Here x1 is equal to 6, y1 is equal to 7,
x2 इज इक्वल टू डी की बात करें 6, x2 x1 y1 x2 y2 एंड y2 इज इक्वल टू 1. तो चेक करें what will be vd mod. Vd mod is equal to distance between point V and D is equal to 6 minus 6 is whole square plus 1 minus 7 whole square. This minus this minus this is equal to 0 plus minus 6 whole square. That is under root 36 लिख सकते हैं is equal to 6 units. मैं इसे 5 और इसे 6 दे रही हूँ. ठीक है, तो इक्वेशन 5 और 6 से देखिए AC जो डायगोनल था वो भी मेरे पास 6 यूनिट्स आया और जो BD डायगोनल है उसका डिस्टेंस भी क्या है, दैट इज 6 यूनिट्स. तो अब हम सम अप करेंगे. दिस एम्प्लॉइज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 क्या है मेरे पास पहली इक्वेशन से, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेते हैं, मॉड लगा देते हैं, इज इक्वल टू DA मॉड. सारे डिस्टेंस इज इक्वल है. ऑल्सो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 5 and 6 इक्वेशन 5 and 6 वी हैव AC mod is equal to BD mod, that diagonals are equal. और देखिए अगर diagonals equal है then we will say hence ABCD is a square. Hence ABCD is a square. Now coming to question number 6. Name the type of a quadrilateral formed if any by following points and give reasons of your answers. मुझे ना एक्चुअली 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन हैं. आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स में मेरे को 4 कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने देखना है कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल के हैं. आपको पता है हमारे पास 5 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. प्रॉपर्टीज़ भी मैं साथ साथ में बताती चलूँगी. स्क्वायर का हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में करा ना कि स्क्वायर के इन केस ऑफ ABCD को हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना था. तो ऑल द साइड शुड बी इक्वल इंक्लूडिंग देयर डायगोनल्स. तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हम उन क्वाड्रिलेटरल को उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देंगे. ठीक है, ये हमारा काम है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is question number 6. first part is this one. so पहले हम नाम दे देते हैं. let point A is equal to this is 1 -1 -2. B है मेरे पास 1 0 and C is -1 2 and point D is -3 0. ABCD are these 3 points. okay, so now we will start. पहले हम एक डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं. डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे. हम किसी भी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेटर को प्रेडिक्शन के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. तो देखिए क्या करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AB मॉड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB फाइंड आउट करना चाहूँगी. एक जो पहले लेटर आएगा मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 बनेंगे, दूसरे वाले के x2 y2. सो हम यहाँ लिख रहे हैं हियर x1 इज इक्वल टू x1 y1 -1, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू दैट इज 1 and y2 is equal to 0, x2 y2. so now let us apply the formula. then what is distance between point AB is equal to square root of x2 minus x1, 1 minus -1. ठीक है, ध्यान से इंटीजर्स के सम्स हैं, ध्यान से साइन ऑपरेट करना है. 0 minus -2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस दिस इज माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास माइनस प्लस 1. ठीक है, एंड होल स्क्वायर ऑपरेट करना ध्यान से. ये है मेरे पास 1 माइनस -1. सो प्लस दिस इज 0 प्लस 2 होल स्क्वायर. फर्दर अगर हम देखें तो मेरे पास बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर.
दैट इज 4 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं यूनिट्स। गिव दिस नंबर 1। सो मैंने ए बी मॉड निकाल लिया। नेक्स्ट मेरा काम है बी सी मॉड निकालना। नाउ व्हाट इज बी सी? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी। सो बी के कोऑर्डिनेट व्हाट इज x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने बी और सी से पॉइंट्स को नाम दे दिए। नो व्हाट इज बी सी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज -1 होल स्क्वायर plus 2 minus 0 whole square. This can be written as -2 whole square plus 2 whole square. That is 4 plus 4 under root. Again this is equal to under root 8 units. Give this number 2. तो मैंने ए बी निकाला, वो अंडर रूट 8 आया, बी सी निकाला, वो अंडर रूट 8 आया। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब बारी है सी डी की, फिर डी ए की। नाउ व्हाट इज सी डी मॉड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल्स टू सी डी के अगर मैं पॉइंट लूँ x1 मेरे पास आ जाएगा -1, y1 मेरे पास है 2, x2 है मेरे पास -3 और y2 है मेरे पास 0। सो x2 दैट इज -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 0 - 2 होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज -3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 होल स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे, होल अंडर रूट। दैट इज 4 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8 यूनिट्स। मैं देख रही हूँ मेरे पास साइड्स जो हैं वो अंडर रूट 8 आने लगी हैं। अब बारी है डी ए डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। तो पहले डी वालों को x1 y1 बोल देते हैं। x1 के कोऑर्डिनेट है -3, y1 के हैं 0, ए के चले जाएंगे मेरे पास x2 y2 के नाम से, ठीक है, वो मेरे पास -1 -2 है। तो व्हाट इज डी ए मॉड? डी ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी ए इज -1 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर लाइक दिस। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर plus -2 square. This is 4 + 4. Again this is under root 8 units. Give this number 4. आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो है सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास अंडर रूट 8 आ रही हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। इन शॉर्ट्स कहें साइड्स जो हैं सबकी इक्वल आ रही हैं। हम बात करेंगे अब डायगोनल्स की। अगर मेरे पास ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है भी बनता है तो इसके डायगोनल्स बन रहे हैं ए सी और बी डी। अब बारी है मेरे पास ए सी मॉड निकालने की, ठीक है। सो x1 मेरे पास बन जाएगा -1 -2, x1 -1, y1 हो जाएगा -2, c के कोऑर्डिनेट्स x2 मेरे पास हो जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ c -1 और y2 हो जाएगा 2। a x1 y1, c x2 y2। सो ए सी मॉड भी हम निकाल लें तो ये मेरे पास बनने वाला है दिस माइनस दिस, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, -+1 हो जाएगा स्क्वायर +2 + 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा दिस इज अंडर रूट 0 + 4 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो इसे मैं 5 दे रही हूँ। ए सी बन गया, मैं बी डी मॉड निकाल रही हूँ। बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 हो जाएंगे, बी है मेरे पास 1, y1 है मेरे पास 0, डी के x2 के कोऑर्डिनेट है -3 और y2 के कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। सो बी डी मॉड हम निकाल लेते हैं। सो बी डी मॉड मेरे पास बन जाएगा -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 इज 0, दिस इज -4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। गिव दिस नंबर 6। क्या मिला कि जो ए सी और बी डी है वो दोनों 4 4 आ गए, सारी साइड्स इक्वल आ गई। सो दिस इम्प्लॉइज फ्रॉम अबव फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या क्या है मेरे पास, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए मॉड, ठीक है। ये सारी साइड्स इक्वल थी। ऑल्सो दैट इज फ्रॉम विच इक्वेशन 5 and 6,
व्हाट वी हैव, AC mod इज इक्वल टू BD mod, ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, हेंस सम अप करते हैं, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, ये किसके, कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं, क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का नाम, दिस इज अ स्क्वायर।